सर नॉर्मलिटी एक बार। हाँ करते हैं, एक मिनट मैं बता दूँ, लास्ट टाइम कंप्लीट नहीं हुआ था अपना। यस ओके, तो सबसे पहले हमने देखा था व्हाट इज सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन इज homogeneous mixture, right, of two or more components. If you have minimum two or more than two components, if you mix them, if their mixture is homogeneous, मतलब how many phases? Only single phase. One phase, right? हाँ, तो homogeneous mixture of कितना, two or Two or more than two. more component, two or more than two components is called solution, right? प्लस Yes. सॉल्यूशन में दो चीजें होती है, सोल्यूट मतलब नॉट नेसेसरी, इट इज जस्ट Solvent, solute. सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। solvent and solid rough concept, right? So solvent, the component of solution which is present in Excess quantity. Large quantity. Large quantity. इसका मतलब अलग होता है, large quantity, right? Yes. The component of solution which is present in large quantity is called as the solvent, and component of solution which is present in comparatively less quantity is called as the Solute. okay, the solvent and solute. Okay, so class, if you express amount of solute in specific amount of solvent, that concept is called as Concentration. concentration of solution. बराबर है? हाँ. So class, Yes. पहले बात, what is binary solution? Which contain only two component. Two components, right? एक solute और एक सॉल्यूट एक Solvent. class solvent हमेशा एक ही होता है, right? Solute Yes. हो सकते हैं. Yes. Solution consists of one solution consists of one solvent and only one solute, right? One solvent and Solute. one solute. Okay. So it depends on states of matter. We can prepare how many binary solutions? 9 type, right? 9 नाइन types. नाइन 9 types. Okay. तो उसमें solvent and Solute. solute. Solvent solid. प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं, Solid solid. अपनी solvent सुरक्षा solid. की जिम्मेदारी हमें खुद उठानी पड़ेगी। बाप रे, हाँ. Solvent solid solute gas, right? या Yes. फिर इन तीनों को कल कौन सा बोलते हैं हम लोग? इनको बोलते हैं हम लोग सॉलिड सॉल्यूशन, राइट? Solid solution. सॉलिड सॉल्यूशंस। सॉल्वेंट सॉलिड है सब केस में. ओके, बाद में सॉल्वेंट लिक्विड लिक्विड Liquid, solid. सॉलिड Liquid, liquid gas. गैस. Liquid. इनको बोलते हैं हम लोग Liquid solution. लिक्विड सॉल्यूशंस। गैस गैस Gas, solid gas, liquid gas, gas. लिक्विड गैस, गैस सॉलिड गैस लिक्विड गैस Gaseous solution. सॉल्यूशन. ठीक है, 9 टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन, राइट? Yes. ओके, देन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट. अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। In specific amount of Specific amount of solvent. solvent. ओके, अमाउंट मतलब क्या? It can be quantity. It can be weight. It can Weight, be volume. It can be number number of of moles, right? Yes. So amount of solute. Dissolved in specific amount of solvent. Amount of solute dissolved in. आपको नोट्स मिला ना? Yes. Yes. Specific amount of Specific amount of solvent. solvent, right? Is called as the concentration. तो क्लास अभी आप क्विकली बताओ. ओके, तो उस पहले ways of expressing concentration. तो उससे पहले Percentage. हम लोग वन टर्म किसके लिए यूज करते हैं? वन Solvent. सॉल्वेंट के लिए, राइट? Solvent. Yes. और टू Solute. सॉलिड के लिए. तो पहला वे है एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, परसेंटेज, Mass by weight, mass. मास परसेंटेज. तो आपको जिस कंपोनेंट का परसेंटेज फाइंड करना है उसका मास, राइट? Yes. Yes. Mass of Mass of component is component. solution upon नॉट mass. नेसेसरी वो सॉलिड हो, वो सॉल्वेंट भी हो सकता है. आपको जिसका भी परसेंट फाइंड करना है, सॉल्वेंट क्या करना है, सॉलिड क्या करना है, जिसका भी करना है, तो जिसका मास परसेंट फाइंड करना है उसका मास, तो मास ऑफ
component in solution. component in solution upon mass of Upon Mass of mass of into 100. entire solution into 100. multiplied by 100. अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन बराबर Yes. Yes. होल थिंग मल्टीप्लाइड बाय 100. 100. इज कॉल्ड एज द मास परसेंटेज राइट बाद में वॉल्यूम परसेंटेज Volume of component in solution upon volume of solution into 100. component in solution upon volume of solution into 100 right 200. percentage Yes. बाद में ये अपने बुक में नहीं है मास बाय वॉल्यूम By Mass volume. Mass of the component Mass upon of component volume into of solution into 100. upon volume of solution into 100. mass of component in solution in solution upon total Upon volume of Volume solution. of solution into 100. Into 100. very good volume of solution into 100 ये हो गया आपका परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम हाँ Yes. अगर आपको क्वांटिटी बहुत कम में एक्सप्रेस करना है एक्सट्रीमली लेस क्वांटिटी तो यू कैन गो फॉर पीपीएम Parts per million. Parts per million. ओके तो पार्ट्स ऑफ वो पार्ट्स क्या हो सकता है Component in solution Number of upon total component parts of- components in the solution into 10 raised to 6. मतलब पार्ट्स क्या हो सकता है पार्ट्स कैन बी उसका मास या फिर Mass, उसका वॉल्यूम volume. Volume. पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन अपॉन टोटल पार्ट्स राइट Total parts in solution into 10 raised to Into 6. Total. raised to पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन राइट Yes. या टोटल वर्ड नहीं लिखा ऑल लिखा तो भी चलेगा मल्टीप्लाई बाय कितना 10 raised to 10 6. raised to 6. मतलब पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन Million. ओके तो यहाँ पे दो चीजें पार्ट्स मतलब वेट में हो सकता है तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन Weight of Yes. solution into 10 raised to 6. You can just see. टू स्टैंड फॉर सॉल्यूट ना Solute. Yes. तो वेट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या होगा सॉल्यूशन Solution. Solution. इनटू 10 raised to 6 10 raised to 6. अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ V2 upon V1 plus V2 into 10 1 raised to 6. plus V2 into 10 raised to 6. 100 10 raised to 6 सॉरी तो दिस इज पीपीएम अगर आपका दो ही कंपोनेंट है तो प्लस 3 होते तो फर्क नहीं पड़ता राइट Yes. 10 भी होते तो Yes. फर्क नहीं पड़ता क्या करते हैं जिसका फाइंड करना उसका वेट अपॉन टोटल वेट या फिर Total जिसका weight. फाइंड करना उसका वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम ओके सर इसको weight by volume में भी कर सकते हैं ना? पीपीएम वेट बाय वॉल्यूम में नहीं करते हैं नहीं करते मतलब सर उसका टेक्स्ट बुक में दिए है कि weight by volume में भी कर सकते हैं. पीपीएम किया है हाँ. मतलब असली देखा नहीं ठीक है चलेगा क्या है तो अपने बुक में दिया है No sir, NCERT की पढ़ के बुक में ठीक है देख वेट बाय वॉल्यूम में मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता कितना पार्ट 10 से 6 पार्ट में वो भी चलेगा वेट बाय वॉल्यूम भी करेंगे क्या फर्क पड़ता है ठीक है मैंने भी Yes. देखा नहीं था हाँ देखते हैं एक बार टेक्स्ट बुक में प्लस नेक्स्ट वे ऑफ एक्सप्रेशन कंसंट्रेशन इज मोल फ्रैक्शन सिंबल x होता है X. अगर आपके सॉल्यूशन में अलग अलग कंपोनेंट है n1 मोल्स ऑफ 1 n2 मोल्स ऑफ 2 n3 मोल्स ऑफ थर्ड कंपोनेंट n4 मोल्स ऑफ फोर्थ कंपोनेंट एंड अप टू NI. I. कोई होता है कंपोनेंट बहुत ज्यादा नहीं होते मोस्टली नॉट नेसेसरी ज्यादा भी हो सकते हैं पर जितने भी हो अपने कंपोनेंट तो जिसका मोल फ्रैक्शन पूछा है समझो हम लोगों को पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ फोर्थ कंपोनेंट x4 तो फॉर्मूला आएगा N4 N4 upon summation of NI. समेशन ऑफ n NI. पहले ये लिख लेते हैं समेशन बाद में लिखते हैं तो n1 N1 plus N2 upon N plus 2 NI. plus NI. ni right Yes. the number of moles of that component upon total moles of all components of the solution right that is called as the Yes. mole fraction Mole fraction. okay and class एक सबसे important चीज अगर सब कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन ऐड करोगे One आएगा. One. Unity. total is always equal to One. 1. 1 okay this is mole fraction okay next concentration term was molarity very important very यहाँ तक हम लोग रुके थे मोलारिटी पे तो डेफिनेशन ऑफ मोलारिटी इज Number of moles of Number solute present in 1 liter of solution. मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो आपको हमेशा 1 लीटर सॉल्यूशन बनाना है क्या No. अब कितना भी बनाओ पर एक्सप्रेस क्या करना है 1 लीटर में कितना होगा राइट
Yes. Yes. प्रेजेंट या फिर डिसॉल्व अच्छा रहेगा, सॉलिड डिसॉल्व इन, या फिर 1 ठीक है liter of चलेगा, मोर भी चलेगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 liter, अदर नेम फॉर 1 liter इज 1 decimeter cube of solution. solution, right? It's called molarity. Okay, number of moles of fluid present in 1 liter of solution is called molarity. Okay, तो अगला molarity का फॉर्मूला क्या होगा? Number Moles of of moles of fluid solid upon volume of solution in N2 by decimeter. V1. N2 by V1. solid. Number of moles of solid का symbol क्या होता है? N2. N2. V1 आएगा, V आएगा बच्चा? V आएगा V आएगा V1 plus V2. हाँ, V1 plus V लिखेंगे ना? V, ये yes. चलेगा, हाँ। भी Number आएगा of moles of solid upon volume of volume of solution Solution in liter. in liter या फिर Decimeter cube. cube. ठीक है लीटर। लग रहा है इसका सिंबल लिखते हैं हम लोग V, राइट? तो एन नंबर ऑफ मोल्स का सिंबल N2, 2 क्यू बिकॉज सॉलिड का है, और V क्यू क्योंकि सॉल्यूशन का है, राइट? Solution का है. तो मोलैरिटी हैज फॉर्मूला N2 upon V in liter. प्लस एक्चुअली इट इज अंडरस्टूड V in liter लिखने की जरूरत नहीं होती, पर हम लोग लिखते हैं V in liter, राइट? Liter. Yes. क्लास अगर हम लोग वॉल्यूम को लीटर से ml में कन्वर्ट करें, राइट? तो फॉर्मूला क्या आएगा? N2 upon V in, Into 1000 करने का. 2000. 2000 हाँ, अगर आप ml इसको वॉल्यूम को ml में लोगे तो फॉर्मूला क्या आएगा? ml into 1000. 1000 हाँ, करना वो बाद में, पहले मुझे बताओ, अगर N2 upon V in ml लोगे तो आपका यूनिट क्या आएगा? मोल पर ml आएगा ना? Mole per mole per milliliter. ml. और मोलैरिटी मोल पर लीटर होता है, मोल पर ml को लीटर मोलैरिटी होता है. नहीं बोलते, Yes. तो उसको आपस मोल पर Yes. लीटर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 1000 1000 से multiply. multiply. तो ये 1000 का फायदा क्या है? आप वॉल्यूम ले रहे हो ml में, पर आपको आंसर मिलेगा किसमें? Liter लीटर में. में, Liter. बराबर है? Yes. ओके, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास W2 by अपॉन M2. मोलर मास का मोलर का फॉर्मूला होता है W अपॉन M। तो N2 का फॉर्मूला होगा मास ऑफ सॉलिड अपॉन Molar mass of मास ऑफ solute. सॉलिड। तो हम लोग N2 को रिप्लेस करेंगे इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 1 में रिप्लेस करेंगे तो M इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 इंटू 1 अपॉन V in liter. V in liter, राइट? ये आपका होगा मोलैरिटी फॉर्मूला नंबर 3। और अगर आप इक्वेशन 2 में N2 को रिप्लेस करोगे तो M इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 इंटू 1000 by V. अपॉन V in ml। ml का और एक नाम क्या होता है? cc Centimeter cube. सेंटीमीटर क्यूब cc। तो क्लास कुछ भी चलेगा, cc लिखो, cm क्यूब लिखो, ml लिखो, एक ही होता है, राइट? तो क्लास ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा? ये वाला, ये सबसे ज्यादा यूज करते हैं हम लोग मोलैरिटी का फॉर्मूला। ओके yes sir yes ओके, तो मैंने आपको JW के लिए एक शॉर्टकट बताया था फॉर्मूला। yes sir w by w into W rho by W into Rho rho into into 10 by M. 10 by M. MCQs के लिए ये फॉर्मूला बहुत काम करता है। W by W परसेंटेज बाय मास इनटू डेंसिटी इनटू 10 into 10 upon Upon molar मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। Molar mass of Solute. solute. ओके, ये फॉर्मूला याद रखो, एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा यूज होता है, मतलब शॉर्टकट बहुत बड़ा है ये। ओके, प्लस नेक्स्ट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्संट्रेशन मोलैलिटी। molality हमने एक्सप्लेन नहीं किया था मोलैलिटी, शायद नहीं किया था। तो मोलैलिटी क्या होता है? समझो हमारे पास एक बीकर है, बीकर में मैंने लिया 2 मोल्स ऑफ यूरिया। कितना यूरिया लिया मैंने? 2 moles of urea 2 moles of urea. ओके, और उसमें डाला मैंने 2 kg ऑफ वाटर। तो क्लास 2 kg किसका वेट है? सॉल्यूशन का है सॉल्वेंट का? Solvent का है. Solvent. सॉल्वेंट का है। देखो हम लोगों ने ये 2 kg होने तक पानी नहीं ऐड किया, सीधा बाहर से कितना पानी ऐड किया? 2 kg. 2 kg. तो क्लास में बताओ इस सॉल्यूशन में यूरिया का कितना मोल प्रेजेंट है 2 किलो में? 2 moles 2 mole. तो 1 किलो में कितना होगा? 1 1 mole. mole. तो डेफिनेशन ऑफ मोलैरिटी इज नंबर ऑफ Number of moles Number of solute Moles of solute dissolved in 1 present kg in of 1 solvent. kg of solvent. सॉल्यूट present डिसॉल्व इन, हां डिसॉल्व प्रेजेंट एक ही चलता है, चलेगा। डिसॉल्व लिखो, प्रेजेंट लिखो। डिसॉल्व इन 1 kg प्लस यहाँ पे मोलैरिटी और मोलैरिटी में डिफरेंस है, क्या बड़ा डिफरेंस है? वहाँ पे 1 लीटर था, यहाँ पे 1 kg है। 1 वहाँ पे kg, 2 लीटर था Yes. और यहाँ पे
सॉल्वेंट है Solvent. वहां पे सॉल्यूशन था, राइट? Yes, yes. Yes. यहाँ पे 1 लीटर सॉल्यूशन था, यहाँ पे 1 kg सॉल्वेंट है. Solvent. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 kg of solvent is called as the molality, right? तो क्लास मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होगा फिर? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, राइट? Yes. सिंबल N2 N2 on W1 W1. W1 ना? W1 W1. in kilogram. W1 क्यों? किसका मास है? Solvent का Solvent. तो W1 in in kg. 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 ओके क्लास आपको वेट ग्राम, अगर इस वेट को आप ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो आपका आंसर जाएगा N2 अपॉन W1 इन ग्राम आ जाएगा, राइट? ग्राम. Yes. Yes. पर W into 1000 करने का. Into 1000. पर मोल्स पर ग्राम मोलालिटी नहीं होता, मोलालिटी क्या होता है? मोल्स पर Moles kg per होता है. kilogram. kg per kg. तो अगर इसको आप लोग ग्राम में लेते हो तो आपको यहाँ पे 1000 से Multiply. Multiply. करना पड़ेगा. क्लास फिर आप N2 को रिप्लेस करोगे M2 W2 अपॉन M2 से, तो आपको W2 by इक्वेशन N2 into 1000 by W1. इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, राइट? इक्वेशन 1 बनेगा आपका W2 अपॉन M2 W2 1 अपॉन 1 upon W1 in W1 kilogram. kg. kg. प्लस एक्चुअली ये kg में लिखने की जरूरत नहीं होता, अगर आपने ऊपर 1 लिखा है मतलब नीचे वो kg में होगा, अंडरस्टूड होता है, राइट? Yes. Yes. 1000 लिखा तो नीचे वो W1 इन ग्राम में आता है. Gram. पर हम लोग लिख लेंगे क्योंकि ना कंफ्यूजन नहीं चाहिए. तो सेकंड फॉर्मूला में डालेंगे तो W2 अपॉन M2 इंटू 1000 by W1 in gram. 1000 अपॉन W1 इन Gram. Grams. तो ये आपका मोलालिटी. हाँ क्लास नेक्स्ट थिंग याद रखो, नेक्स्ट कॉन्सोलेशन टर्म जो अपने टेक्स्ट बुक में नहीं है, नॉर्मैलिटी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. JEE नीड सिंबल होता है इसका कैपिटल N. बट बिफोर यू स्टार्ट नॉर्मैलिटी वी नीड टू अंडरस्टैंड. ओके पहले इसका डेफिनेशन में लिख लेता है इसे, फिर देखेंगे. इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोलारिटी जैसा ही होता है, मोलारिटी जैसा नंबर ऑफ. क्लास मोलारिटी में क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स होता है, राइट? Moles होता है. Yes. यहाँ पे Yes. नंबर ऑफ मोल्स आता है, यहाँ पे होता है नंबर Gram ऑफ equivalent. ग्राम Gram. इक्विवेलेंट. Number of grams. ग्राम नहीं, ग्राम Gram इक्विवेलेंट. equivalent. ग्राम और ग्राम इक्विवेलेंट बहुत अलग चीज है. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्लास ग्राम इज डिफरेंट थिंग, ग्राम इक्विवेलेंट डिफरेंट थिंग. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ solute present in 1 liter of solution. 1 liter of solution. Class before I go for normality, molarity का यूनिट क्या होगा? molarity का यूनिट Mole per liter. मोल पर लीटर या फिर मोल पर Decimeter cube. DM2. क्लास, या फिर इसको शॉर्टकट में सिर्फ कैपिटल एम भी लिखते हैं. कैपिटल एम Yes. स्टैंड फॉर मोल पर लीटर या फिर मोल पर डीएम क्यूब. मोलारिटी तो इफ आई राइट 5m मतलब क्या? 5 मोल पर लीटर. 5 mole per liter. हाँ कैपिटल एम लिखना अलाउड है और ऐसे ही मोस्टली लिखते हैं कैपिटल एम मोलारिटी के लिए. ओके मोलारिटी का यूनिट क्या है? मोलारिटी का Mole per kg. मोल पर केजी. मोल पर केजी तो इस यूनिट फॉर मोलारिटी. यहाँ पे देख के पता चला N2 का नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट होता है मोल, W1 का यूनिट होता है वेट का यूनिट होता है केजी, राइट? तो मोल पर केजी. चलो यहाँ पे आते हैं. हाँ तो नंबर ऑफ ग्राम क्लोराइड सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज व्हाट? नॉर्मैलिटी. Normality. normal अभी नंबर ऑफ ग्राम क्लोराइड कैसे फाइंड करते हैं एक के बाद एक? तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू गिवन मास प्लस वो मास हमें एग्जाम में वो देंगे, ठीक है? जैसे 5 ग्राम इज डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर वॉट एवर. तो गिवन मास बराबर yes ऑफ सॉल्यूट या फिर मास ऑफ बेटर मास ऑफ सॉल्यूट लिखते हैं हम लोग. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, किसका ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड करना हम लोग को? सॉल्यूट क्या करना है ना? Solute. Solute. solute वही लिखते हैं. तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट is equal to mass of solute ब्रैकेट में सिंबल W2 2 ना या 1 2. 2 Two. 2 क्यों? Two solute आएगा. इसलिए. हाँ Solute है. Solute. अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट. E2.
इक्विवेलेंट मास का सिंबल होता है E, तो सॉलिड है इसलिए E2। तो W अपॉन E2 आपको क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉलिड ग्राम इक्विवेलेंट। प्लस इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला होता है मोलार मोलर मास n factor. One Valency. factor, Factor. मोलार मास अपॉन n फैक्टर। n Valence. factor. मतलब वैलेंसी भी चलेगा, वैलेंसी सब जगह पे नहीं काम करेगा, n फैक्टर। Sir, valence Yes. वैलेंसी फैक्टर को n फैक्टर को वैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं, वैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं n फैक्टर को, आपको जो अच्छा लगे, पर वैलेंसी मत बोलना, वैलेंसी फैक्टर चलेगा, ठीक है। n Yes. Sir, n factor का ऑक्सीडेशन नंबर होता है. बताता हूँ n फैक्टर क्या होता है। तो n फैक्टर अलग अलग केस में अलग अलग होता है। तो सबसे पहले एसिड का n फैक्टर क्या होता है, H plus तो होता है. एसिड का n फैक्टर होता है वो कितना H H+ देता है, right? ionizable H plus ions. हमने किया था ये Yes. Yes. आयनाइजेबल H+ आयंस, राइट। H plus ions. तो क्लास अगर हमारे पास HCl है तो HCl में क्या देगा, 1. 1, H+ कितना H ही देगा ना, एक H+ देगा। प्लस उसी को हम लोग बोलते हैं एसिड का बेसिसिटी, क्या बोलते हैं एसिड का बेसिसिटी। मतलब एसिड को बेस के साथ न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने H+ है एसिड के पास, समझा बेसिसिटी। Sir, एक बार सुनो तो ना. बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड के पास कितने हैं, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन, H+ आयन रिएक्ट विद OH OH minus to minus. water and form water, this is called neutralization। Neutralization. एसिड के पास बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने H+ है, बराबर है। Yes. इसलिए Yes, sir. इसलिए एसिड का क्या होता है, एसिड का होता है बेसिसिटी। Basicity. basicity. एसिड का बेसिसिटी होता है, मतलब वो एसिड बेस को कितने क्या दे सकता है, H+ आयन H दे plus सकता है ions. न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो आयनाइजेबल H+ आयन इसको बोलते हैं बेसिसिटी। तो क्लास अगर हमारे पास एसिड है HCl तो हमें मिलेगा 1. 1. प्लस H plus plus Cl minus. तो इसका n फैक्टर कितना होगा, 1 होगा, राइट। 1. हाँ क्लास इस एसिड का नाम मालूम है किसी को, कभी नाम सुना है, इसका नाम है ऑक्सैलिक एसिड, डायबेसिक एसिड, ये ऑर्गेनिक एसिड है। हाँ तो क्लास इसका 2 ग्रुप है, तो क्लास इसको पानी में डाला तो ये आपको देगा COO माइनस एंड 2H 2H plus. plus. H plus. यहाँ पे H+ जाएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे H+ जाएगा, यहाँ पे माइनस, समझा। तो Yes. इसका n फैक्टर Yes. कितना होगा, 2. 2. वो Two. होगा। ऑक्सैलिक एसिड वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये जेडोली के लिए या नीट के लिए। ओके ऑक्सैलिक एसिड का आपको मालूम होना चाहिए, बेसिसिटी कितना है, 2 है। ओके बेस के लिए क्या होता है n फैक्टर, Ionizable OH minus. OH minus OH ion. minus ions. Acidity of base. OH माइनस आयंस, उसको बोलते हैं बेस का Acidity. Acidity. एसिडिटी। तो क्लास अगर हमारे पास बेस है NaOH, 1 NaOH will minus. give us 1. Na Na plus and OH minus. OH minus, उसका n फैक्टर 1. 1. 1 होगा। अगर हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा बेस MgOH टाइस, तो आपको मिलेगा 2 आएगा 2. Mg2 plus plus 2H minus. इसका n फैक्टर 2. 2 आएगा, ठीक, इसका n फैक्टर 2 आएगा। प्लस सॉल्ट के लिए n फैक्टर होता है, n फैक्टर होता है टोटल नेट Total H plus पॉजिटिव Net charge. प्लस सॉल्ट की बात करें, सॉल्ट टोटल पॉजिटिव, नेट पॉजिटिव और नेट net negative. Negative. नेट से अच्छा टोटल होगा वर्ड, टोटल पॉजिटिव चार्ज या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज, दोनों भी चलता है। एक्सप्लेन करेंगे हम लोग टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज। ओके फॉर एग्जांपल Ca3PO4 ट्वाइस, राइट, ये सॉल्ट है, बराबर ना। इस तरह को पानी में Yes. डालता हूं, क्या मिलेगा, 3 कैल्शियम मिलेंगे, बराबर, और 2 PO4. फॉस्फेट मिलेंगे। देखो कितने कैल्शियम आपके पास, 3 है, राइट, 3. कितने फॉस्फेट आपके पास है, 2। 2. और चार्ज बैलेंस करने के लिए क्या होता है, जितने कटान होते हैं उतना आयन का चार्ज होता है, और जितने आयन होता है उतना कटान का चार्ज होता है, राइट। Yes. Yes. बैलेंस करने के लिए 3 2 6 2 3 6, बराबर। Yes. अपन बोलता Yes. हूं
जितने कटायन होते हैं वो आनायन का चार्ज होता है और जितने आनायन होते हैं वो कटायन का चार्ज होता है। कटायन का चार्ज प्रॉब्लम एक ही है कि कटायन पॉजिटिव होता है और आनायन नेगेटिव नेगेटिव तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कितना आपके पास, टोटल पॉजिटिव चार्ज आपके पास है +6 राइट। +6 तो अगर हमें सिर्फ उसको 6 एज्यूम करना है, प्लस माइनस साइन लेना नहीं है हमें। प्लस 2 3 6 6 माइनस 6 है, 6 तो हमें एज्यूम क्या करना है, सिर्फ 6 6 तो क्लास टोटल पॉजिटिव चार्ज हो या टोटल नेगेटिव चार्ज हो, एन फैक्टर होता है, तो क्लास यहाँ पे एन फैक्टर कितना होगा 6 होगा। 6 तो सॉलिड के लिए एन फैक्टर क्या होता है, टोटल पॉजिटिव और 6 टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव नेगेटिव। चार्ज प्लस कोई एक ही लो, क्योंकि दोनों जितना ही पॉजिटिव होता है एग्जैक्टली उतना नेगेटिव भी होता है राइट। यस हाँ yes क्योंकि सॉल्ट्स आर न्यूट्रल, हमारे पास चार्ज सॉल्ट होते नहीं, इसलिए नेट पॉजिटिव चार्ज और नेट नेगेटिव चार्ज हमेशा सेम ही आएगा। तो उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना हम लोग को, प्लस माइनस साइन देखना नहीं है, ठीक है। बैलेंस फैक्टर में साइन नहीं लेते, प्लस माइनस साइन। और क्लास एक और है, अभी इस चैप्टर में ज़्यादा हो रहा है पर ठीक है फिर भी। नेक्स्ट होता है फॉर रेडॉक्स रिएक्शन, किसके लिए, redox reaction. रेडॉक्स रिएक्शन, उसके लिए इन फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं हम लोग। क्लास फॉर एग्जांपल Zn plus CuSO4 gives you ZnSO4 plus Cu प्लस Cu। तो क्लास इस रिएक्शन में जिंक के ऊपर कितना चार्ज है, यहाँ पे 0 0 और यहाँ पे +2 ना। +2 ZnSO4 क्या Yes. देगा आपको, ZnSO4 को क्या देगा, Zn +2 and SO4 -2 राइट। Yes. तो क्लास यहाँ पे जिंक 0 से +2 तो इसमें चला गया, क्या रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन oxidation ऑक्सीडेशन है। क्लास कितना चेंज हुआ, 0 से बिकम कितना, 2 2 तो यहाँ पे एन फैक्टर आपका आएगा 2, किसके लिए, 2 ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एन फैक्टर कितना आएगा, 2 आएगा। रिडक्शन रिएक्शन देखते हैं, व्हाट इज चार्ज ऑन सी ऑन रिएक्टेंट साइड, +2 राइट। +2 व्हाट इज चार्ज ऑन सी ऑन प्रोडक्ट साइड, 0 0 reduction by 2 +2 बिकम 0। तो यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन हुआ राइट। reduction yes और रिडक्शन में कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, 2 2। 2 तो यहाँ पे भी एन फैक्टर कितना आएगा, 2 आएगा। तो ऑक्सीडेशन का भी एन फैक्टर 2, रिडक्शन का भी एन फैक्टर 2 2 okay। so this is everything about what, how to find n factor, okay। तो equivalent mass is equal to molar mass upon n factor, यहाँ तक ठीक है। Yes. सर वैलेंसी कब आएगा वैलेंसी फैक्टर अभी मैं बताता हूँ, Cl2 बात करते हैं हम लोग। अगर मेरे पास Cl2 है तो Cl2 का वैलेंसी कितना है बोलो, 1 1 है 1 राइट। तो यहाँ पे वैलेंस फैक्टर कितना आएगा, 1 आएगा, है ना। यस सर समझा फिर वो एक सीएल करा ना, 2 सीएल एक Cl करना है, 2 Cl2 का 2 आएगा, Cl2 का 2 आएगा, 2 आएगा यस Cl का 1 आएगा, Cl2 का 2 आएगा, सॉरी 2 आएगा ओके। हाँ एटम हो गया तो वैलेंस फैक्टर आता है, ठीक है। एटम्स यस मतलब सॉरी हाँ एटम नहीं एलिमेंट होगा, तो नॉट एटम एलिमेंट, अगर आपके पास एलिमेंट है तो इसका 2 आता है। सर डाइल्यूशन का भी होता है ना, m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2। वो अलग चीज है, वो वैलेंस फैक्टर नहीं, वो आगे आएगा आपको यस करेंगे क्वेश्चन। m1 v1 इक्वल टू m2 v2 वो सब अलग चीज है, वो डाइल्यूशन की पार्ट है, वो अभी तक नहीं हमने किया, डिस्कस करेंगे, यस एमसीक्यूज करेंगे तब करेंगे, ठीक है। तो क्लास ये नॉर्मलिटी देखते फिर हम लोग अभी। तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉलिड राइट, यस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इन सॉल्यूट in 1 liter इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको अगर हम फॉर्मूला के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे नॉर्मलिटी बोलो, नंबर ऑफ gram equivalents of solute ग्राम इक्विवेलेंट upon volume of Gram solution in liter सॉल्यूशन इन 1 लीटर। फॉर्मूला में लिख रहा है राइट, ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, बराबर है। yes yes लीटर, ठीक है। प्लस क्या फॉर्मूला नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स का, given mass upon empirical mass अरे नहीं बिल्कुल नहीं, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, एम्पिरिकल मास अलग होता है, equivalent mass yes एम्पिरिकल मास अलग चीज है, मास ऑफ सॉलिड अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉलिड। equivalent mass of solute तो मैं सिंबल में लिखता हूं W2 अपॉन E2, चलेगा ना। यस सर yes yes sir तो W2 अपॉन E2 E2 into 1 upon V in वी इन liter liter liter
क्लास वॉल्यूम का एमएल में लोगे तो क्या होगा, सबको मालूम है। ऊपर Multiply by multiply. 1000 तो फाइनल फॉर्मूला का नॉर्मलिटी का W2 अपॉन E2 इंटू 1000 upon volume in milliliter. मिलीलीटर। ओके, तो यही फॉर्मूला सबसे ज़्यादा यूज होता है नॉर्मलिटी का, जो आपने अभी लास्ट में लिखा हो। तो ये फॉर्मूला आप बाहर करो, तो ये सब ऊपर का पार्ट आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सब ये पार्ट ग्राम इक्विवेलेंस एंड ऑल, ये पार्ट आपको ज़्यादा आपका क्लास, इसके क्वेश्चन अलग से आ सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंस के ऊपर आपको JEE में, तो आपको मालूम भी होना चाहिए राइट, ग्राम इक्विवेलेंस क्या होता है। ठीक है, एनी डाउट इन नॉर्मलिटी? सर इसका भी आता है ना N1 V1 equals to N2 V2. तो चलो ऐसा मैं बताता हूँ अभी, वो सब आपको ये सब ना JEE का पार्ट है N1 V1 क्या। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, चलो वो क्या होता है आपको बताता हूँ आपके पास। चलो ये सब आपको अभी सीखना है, अभी सीखते हैं। एक बीकर में सॉल्यूशन है, उसका मोलारिटी कितना है, M1 है राइट, और उसका वॉल्यूम कितना है, V1 है। समझो कौन सा सॉल्यूशन है, HCl है, मोलारिटी M1 वॉल्यूम V1। दूसरे बीकर में भी HCl है, उसका मोलारिटी M1 और उसका वॉल्यूम सॉरी उसका मोलारिटी M2 एंड वॉल्यूम कितना V2. V2, वो भी HCl है। प्लस HNO3 भी चलता है, एसिड चलता है, क्योंकि एसिड रिएक्ट करता है नहीं करता, Yes sir. नहीं करता, एसिड रिएक्ट नहीं करता राइट। तो अगर आपके पास एक या अलग अलग आपका सेम एसिड या फिर अलग अलग एसिड, फर्क नहीं पड़ता, पर एसिड से होने चाहिए राइट। तो ये HCl है, ये समझो ये भी HCl लेते हैं हम लोग, उसका वॉल्यूम मोलारिटी कितना M2, वॉल्यूम कितना V2। तीसरा भी कर लेते हैं, उसमें भी HCl है, वॉल्यूम V3 एंड मोलारिटी M3। मोलारिटी M3 एंड वॉल्यूम V3, ये भी तीनों को मिक्स किया और सॉल्यूशन बना दिया राइट। मतलब तीनों भी सॉल्यूशन ही है, पर तीन सॉल्यूशन मिक्स करके नया सॉल्यूशन बना दिया राइट। तो इसका मोलारिटी कितना होगा, तो फॉर्मूला है M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V3। ये समझा? Yes sir. हाँ, ये आपका M1 V1 आप बोल रहे हैं ना, वो सब ये है। Yes sir. दूसरी चीज, अगर आपको मोलारिटी यहाँ पे नॉर्मलिटी दिया रहेगा, इंस्टेड ऑफ मोलारिटी क्या दिया रहेगा, Normality. Normality. समझो इसका वॉल्यूम कितना है V1, नॉर्मलिटी N1, इसका वॉल्यूम V2, नॉर्मलिटी N2, इसका M1 वॉल्यूम के V3, जगह N1. नॉर्मलिटी N3। तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला होता N1 प्लस 3 नहीं 4 भी चलेंगे, 5 भी चलेंगे, 2 भी चलेंगे राइट। फॉर्मूला तो एक ही है, Yes. N1 V1 प्लस N2 V2 प्लस N3 V3 अपॉन V1 plus V2 plus V3। ठीक है, अभी दूसरी बात देख करते हैं हम लोग। तो हमारे पास एक बीकर है जिसमें सॉल्यूशन, इसका मोलारिटी कितना है, सॉल्यूशन का मोलारिटी है समझो 0.1, कितना है मोलारिटी 0.1 मोलार, या फिर 1 लेते हैं 1, कितना मोलारिटी उसका 1 मोलार। और ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम है कितना 10 ml, कितना वॉल्यूम है इसका 10 ml। तो हमारे पास 10 ml सॉल्यूशन है 1 मोलार। इज इट क्लियर? Yes. हाँ, Yes. अभी इसमें मैंने पानी डाला, कितना डाला 90 ml, 90 ml मैंने पानी डाला राइट। इस सॉल्यूशन में आई ऐड 90 ml ऑफ वाटर। ओके, तो क्लास अभी पहला वॉल्यूम V1 था, अभी दूसरा वॉल्यूम ओके 90 ml पानी डाला, ठीक है जो भी है। चलो मोलारिटी सेम होगा, चेंज होगा, मोलारिटी सेम रहेगा, Change होगा. Change Change होगा होगा. होगा ना। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ मोलारिटी, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन Number of moles on volume. वॉल्यूम in चेंज, तो liter. मोलारिटी भी चेंज राइट। Yes. हाँ, तो मोलारिटी चेंज होगा, तो आपका आंसर होगा वो मोलारिटी कितना होगा, तो आपका आंसर होगा M1 V1 इक्वल टू M2 V2, इनिशियल मोलारिटी इनटू इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल मोलारिटी इनटू फाइनल वॉल्यूम। तो मुझे Final बताओ volume. इनिशियल मोलारिटी कितना था, इनिशियल मोलारिटी कितना था आपका, 1 molar. 1. वॉल्यूम कितना था इनिशियल, 10. 10. ओके फाइनल वॉल्यूम कितना है 90. 100 है बच्चों, 100 है, जानबूझ के लिखा मैंने 100। आपका ऑलरेडी 90 था, 10 था, उसमें 90 और डाला, तो आपका फाइनल वॉल्यूम कितना होगा 90 हो गया 100 हो गया, 100. 100. ऑलरेडी 10 था ना अंदर ml,
Yes. Yes. तो 90 डालोगे तो फाइनल वॉल्यूम कितना होगा? 90 होगा, 100 होगा? 100. 100. यहाँ पे आपको M2 का वैल्यू आएगा 10/100, राइट? 0.1. 0.1 आएगा। तो 0.1 बोला, तो ये समझ रहे हैं आपको वो फॉर्मूला है? यही फॉर्मूला नॉर्मलिटी के लिए भी चलेगा। अगर आपको नॉर्मलिटी दिया रहेगा N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2, अगर आपको नॉर्मलिटी दिया होता तो ये फॉर्मूला था। क्लियर है सब लोग को? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो ये सब फॉर्मूला अपनी टेक्स्ट बुक में नहीं है, सब JEE के पार्ट है। तो हम लोग जब JEE करेंगे तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, तो अपना पहला पार्ट हो गया कंप्लीट। कौन सा? सॉल्यूशंस। ओके, न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे, जैसे JEE में करेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें। तो अभी देखते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज colligative properties. Class, before we start colligative properties, let us understand meaning of non-volatile solute and volatile solute. क्लास, अगर हम लोग बीकर में वाटर लेते हैं और उस बीकर में ऐड करते हैं शुगर और उसको स्टर करते हैं, सॉल्यूशन बनेगा? यस सर। तो बीकर में हमने क्या लिया? वाटर लिया है और उसके अंदर क्या डाला हम लोगों ने? शुगर। Sugar. शुगर। Sugar. तो क्लास वाटर में शुगर डाला हम लोगों ने, तो सॉल्यूशन बन गया होमोजेनियस मिक्सचर वाटर प्लस शुगर। तो जो हमने लिया 1 लीटर वाटर, उसमें डाला हम लोगों ने 10 ग्राम शुगर, या सॉल्ट भी ले सकते हैं, आपको जो अच्छा लगता है, सॉल्यूशन बनना चाहिए बस, दैट इज द थिंग। प्लस अभी इसको हमने इस बीकर को जो सॉल्यूशन बना है उसको हमने रखा गैस बर्नर के ऊपर, राइट? ये सॉल्यूशन हमने गैस के ऊपर रख दिया, तो क्लास क्या होता जाएगा बोलो? Water vaporize हो जाएगा. हाँ, शुगर होगा? No. नहीं, जब तक बीकर में वाटर है तब तक शुगर का कुछ नहीं होगा, मालूम है आपको? Yes. Yes. Concentration increase होगा। हाँ, कौन सा इंक्रीज होगा, पर शुगर का वेपर बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा. वाटर जब का तक बीकर में लास्ट ड्रॉप वाटर खत्म नहीं होता तब तक शुगर का वेपर नहीं बनेगा. और जब वाटर वेपराइज हो जाएगा तो शुगर क्या हो जाएगा? शुगर डिकम्पोज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में वाटर बनेगा। पर हम Yes. वहाँ पे जाएंगे नहीं। Yes. मुझे क्या क्वेश्चन है, जब तक बीकर में वाटर है तब तक शुगर वेपराइज नहीं होगा. नहीं नहीं होगा। होगा। तो ना ऐसा सॉल्यूट जिसका सॉल्यूशन में क्या नहीं बनता? वेपर्स नहीं बनता, उसको बोलते हैं हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। प्लस ये इस चैप्टर का आगे का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, कौन सा? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो इसको हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं NVS। व्हाट इज फुल फॉर्म? Non-volatile solute. Non-volatile solute. ऐसा सॉल्यूट जिसका वेपर नहीं बनता। क्लास, शुगर के जब सॉल्ट होता तो क्या होता बोलो? सेम चीज होता, राइट? Yes. Yes. वेपर नहीं Yes. बनता. वेपर नहीं बनता, सॉल्ट का वेपर नहीं बनता, पूरा पानी इवेपोरेट होता, फिर बीच में अब सबसे एंड में Yes. बचता है बीकर में सॉल्ट के पार्टिकल बचते, राइट? Yes. शुगर या फिर Salt. सॉल्ट या फिर यूरिया। कुछ एग्जांपल याद यूरिया. रखो जो कॉमन है, ये सब किसके एग्जांपल है? नॉन Non-volatile volatile solute. NVS. या फिर कोई भी सॉल्ट लो आप, NaCl, KCl, कोई भी सॉल्ट लो, तो शुगर, सॉल्ट एंड यूरिया, ये सब किसके एग्जांपल है? नॉन वोलेटाइल सॉलिड के। ओके, प्लस हम लोग पानी लेते हैं, समझो 1 लीटर वाटर लेते हैं। सर हाँ बोलो। सर एक बार वापस समझाओ ना। नॉन वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल मतलब जिसका वेपर्स नहीं बनता पानी में। अगर हम लोग पानी में शक्कर डाले और उसको डिसॉल्व करें, सॉल्यूशन बनेगा? नो क्यों नहीं बनेगा? शुगर पानी में डिसॉल्व नहीं होता। सर बनेगा। अब ये सॉल्यूशन को हम लोग हीट करेंगे तो क्या होगा? उसमें से क्या उड़ जाएगा? पानी उड़ जाएगा, शक्कर उड़ जाएगा? पानी उड़ जाएगा। शुगर तो ऐसे रहेगा ना अंदर। यस सर। शुगर क्या है? नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब क्या? जिसका वेपर्स बनता है, और जिसका नहीं बनता वो क्या होता है? नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल। ठीक है। यस सर। अगर हम लोग वाटर में कैम्फर डालें, कैम्फर मालूम है आपको? कापूर। कापूर. Yes. Yes. कैंपर। अगर आप हीट करना शुरू करें तो वाटर से पहले कैम्फर ही उड़ जाएगा, मालूम है आपको? Yes. 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 तो कैम्फर कैसा होगा आपका? Volatile solute. Volatile solute. हाँ, तो ऐसा सॉल्यूट जो क्या बना, जिसका क्या बनता है? वेपर बनता है, राइट? तो सर एसीटोन डाला तो भी होता है क्या? हाँ, एसीटोन डाला तो?
एसिडोन भी वोलेटाइल है, एसिडोन वोलेटाइल है, इथिल अल्कोहल वोलेटाइल है, कैम्फर वोलेटाइल है, बहुत सारे एग्जांपल है वोलेटाइल के। ओके, नैफ्थलीन वोलेटाइल है। बट क्लास हमें वोलेटाइल सॉलिड का आगे प्रॉपर्टी सीखना नहीं है, हमें किसका सीखना है प्रॉपर्टीज? नॉन वोलेटाइल। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर यूजफुल ओनली फॉर विच सर सॉलिड? पेट्रोल्स क्या है? पेट्रोल वोलेटाइल है। वोलेटाइल है ना? यस। ओके, तो हमें क्या सीखना है? उसी सॉलिड का प्रॉपर्टी सीखना है जो क्या है? वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल है, आई एम सॉरी, कौन सा है? नॉन वोलेटाइल। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आर एप्लीकेबल ओनली फॉर विच सॉलिड? नॉन नॉन वोलेटाइल। 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 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ नॉन वोलेटाइल सॉलिड के लिए एप्लीकेबल है, वोलेटाइल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ओके, तो क्लास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है वो समझने के लिए हम दुनिया में 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, देयर आर 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो मैं आपको एग्जांपल देके एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम लोग उनको डिटेल में सीखेंगे, हर एक प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके सीखेंगे, वही अपना बचा हुआ चैप्टर है। तो क्लास सबसे पहले देखते हैं हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल क्या होता है। तो समझो हम लोग एक बीकर लेते हैं, बीकर में लिए हम लोगों ने 1 kg वाटर। क्लास हम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो बीकर में हमने लिया है 1 किलो वाटर। कितना वाटर लिया है? 1 किलो। क्लास नॉट नेसेसरी 1 किलो, आप कितना भी ले सकते हो, और मैंने लिया है कितना? 1 kg ऑफ वाटर। कितना वाटर लिया हम लोगों ने? 1 kg ऑफ वाटर। ओके, एनीबडी नो व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर? 100 100 degree डिग्री Degree सेल्सियस। Celsius. क्लास में लिखता हूँ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर T B। B मतलब बॉइलिंग पॉइंट, राइट? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो क्लास ये प्योर वाटर, राइट? इसके अंदर कुछ भी नहीं है, दिस इज 100% वाटर, प्योर वाटर। तो मैं इसके ऊपर लिखता हूँ 0। तो क्लास याद रखो, इस चैप्टर में अगर किसी चीज के ऊपर हम लोग पावर में 0 लिखते हैं, मतलब क्या वी आर टॉकिंग अबाउट द प्योर कंपोनेंट। कोई भी कंपोनेंट अगर प्योर होगा तो उसके हम लोग टॉप पे क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। तो ये 0 क्या इंडिकेट करेगा? इस चैप्टर में 0 इंडिकेट क्या करेगा? प्योर कंपोनेंट, ठीक है? Yes sir. तो एवरीवन नो व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर? 100 100 डिग्री डिग्री सेल्सियस। यस। 100। तो क्लास अगर इसका हम लोग बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करेंगे तो दिस वाटर विल बॉयल एग्जैक्टली एट 100 डिग्री। क्लास अगर आधा किलो पानी होता तो कितने बॉयल होता? 100 डिग्री। 100 डिग्री। तो क्लास वो फर्क नहीं पड़ता उसको, राइट? कितना भी हो। दैट इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। यू हैव टू लर्न इन थर्मोडायनामिक्स। इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब जो प्रॉपर्टी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं होता, नहीं होता। ठीक है? तो 1 kg वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। प्लस अभी हम इसके अंदर ऐड करेंगे कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉलिड। क्या ऐड करेंगे? नॉन वोलेटाइल सॉलिड। प्लस फॉर एग्जांपल वी ऐड हियर 0.1 मोल यूरिया। क्या ऐड किया हम लोगों ने? 0.1 मोल यूरिया। Urea. तो यूरिया के कितने मॉलिक्यूल्स थे हम लोगों ने? बोलो। 6.022 6.022 into 10 raised to 22। 22 बराबर ना? 1 होता तो 23 होता, ये 0.1 है, राइट? तो 10 से 23 डिवाइड करना yes। पड़ेगा। 22 Yes. पार्टिकल्स, राइट? या फिर मॉलिक्यूल्स? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स बोलो या फिर ब्रैकेट में लिखता हूं मैं एंटाइटीज। पार्टिकल्स। पार्टिकल्स, ठीक है? यस। तो क्लास यूरिया कैसा सॉलिड है? नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल। आपको मैं 3 एग्जांपल याद रखना है बहुत केयरफुली। शुगर, यूरिया एंड सॉल्ट, राइट? सॉल्ट। तो यूरिया इज Yes। नॉन वोलेटाइल सॉलिड। तो क्लास अगर हम लोग किसी भी सॉल्वेंट में, यहाँ पे सॉल्वेंट कौन है? वाटर। वाटर। क्या ऐड करता है? नॉन वोलेटाइल सॉलिड। सॉल्यूट। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। क्लास कैसे बढ़ता है वो बहुत डिटेल में हमें सीखना है, पर आप फिलहाल याद रखो क्या बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। तो वाटर जो 100 डिग्री पे बॉयल होने वाला था, प्योर वाटर, अभी यूरिया डालने के बाद उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 रहेगा, 100 से ज्यादा होगा ज्यादा होगा। हमेशा। क्यों होता है, कैसे होता है, हमें बहुत डिटेल में सीखना है बाद में। तो क्लास में लिखता हूँ यहाँ पे टीबी। व्हाट इज टीबी? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बराबर ना? सोल्यूशन। हाँ, क्योंकि ऊपर 0 क्यों नहीं लिखा? बिकॉज अभी ये प्योर प्योर नहीं है, नहीं है। उसके अंदर यूरिया भी आ गया। तो क्लास से फॉर एग्जांपल कितना आ गया? 100.1 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 100.1 डिग्री सेल्सियस। तो ना बॉइलिंग पॉइंट कितने से बढ़ा? 0.1। 0.1 से। वेरी गुड। तो बॉइलिंग पॉइंट कितने से बढ़ा हमने कैसे फाइंड किया? डेल्टा। डेल्टा मतलब क्या? चेंज ना? डिफरेंस। हाँ, क्लास चेंज मतलब बढ़ना या कम होना? दोनों हो सकता है। दोनों हो सकता है। तो इस केस में क्या? बढ़ना, राइट? बढ़ना। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी टीबी माइनस
TB not. T0 TB0 राइट। तो Yes. आंसर आएगा 100.1 minus 100. 100 degree Celsius, that is equal to 0.1 degree 0.1 degree Celsius. Celsius. Very good. समझा ये? तो क्लास Yes. when we add a non volatile solute in solvent, boiling point क्या होता है? Increase होता है. Increase. हाँ क्लास आपको यूरिया का फॉर्मूला मालूम है? Anybody? फॉर्मूला ऑफ यूरिया? NH2CO NH2. NH2 NH2 और उसका मोलार मास मालूम है यूरिया का? 60 है, फाइंड कर सकते हैं इजीली। तो यूरिया का फॉर्मूला NH2CO NH2, उसका मोलार मास नाइट्रोजन 14 होता है राइट, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 आप फाइंड कर सकते हैं आराम से। तो Yes. मोलार मास का यूरिया कितना है? 60 है। 60. ठीक है, तो हम दूसरा भी कर लेते हैं। ओके, इस सॉल्यूशन का मोलारिटी कोई बता सकता है? मोलारिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन जरूरत नहीं, फिर भी ऐसे पूछ रहा हूं। मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, बराबर? ओके, हाउ मेनी मोल्स ऑफ सॉलिड यू आर हैविंग? 0.1. 0.1. 0.1 आएगा. ओके, एंड व्हाट इज मास ऑफ सॉल्वेंट? 1. 1 One. kg. या ऐसे ही पूछा आपको मैंने। तो इस सॉल्यूशन का मोलारिटी कितना है? 0.1. 0. mole per kg. 1 mole per kg. प्लस एक चीज मुझे अभी याद है तो पहले बताते हो आपको। हमने जब कॉन्सोनेंट टर्म सीखे अलग अलग राइट, मोलारिटी परसेंटेज मास एवरीथिंग राइट, ये सब सीखे हम लोगों ने। तो बस Yes. एमसीक्यूज के लिए आप किधर तो लिख लो आपके बुक में, कॉन्सेंट्रेशन टर्म विच इन्वॉल्व्स वॉल्यूम, जिसमें वॉल्यूम आता है राइट। प्लस एग्जांपल बताओ मुझे। Volume by volume, mass by volume, मोलारिटी, molarity. Yes. हाँ. Normality. नॉर्मलिटी। Normality. तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स विच इन्वॉल्व्स वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन Temperature. टेम्परेचर। सिंपल लॉजिक है। क्यों? Volume increase decrease होता है टेम्परेचर बढ़ने के से. टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम बढ़ता है, टेम्परेचर कम होता है वॉल्यूम कम होता है राइट। कम होता है. Yes. चार्ल्स लॉ डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर चेंज होता है तो वॉल्यूम भी चेंज होता है। अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो प्लस देखो दिस इज फॉर्मूला ऑफ मोलारिटी, टेम्परेचर चेंज हो तो वॉल्यूम चेंज होगा, और वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलारिटी भी क्या होगा? Change होगा. Change होगा. देखो द कांस्टेंट टर्म्स व्हिच इन्वॉल्व वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ओके, कांस्टेंट टर्म्स ओके दूसरा लिखने की जरूरत नहीं ना, व्हिच डू नॉट इन्वॉल्व वॉल्यूम इज Independent of इंडिपेंडेंट ऑफ temperature. टेम्परेचर। तो क्लास ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है एमसीक्यूज में, आपके बुक में देखोगे which of the following concentration term is dependent of temperature और independent of temperature। समझेगा ना, इजी समझेगा ना। Yes. तो जिसके फॉर्मूले में वॉल्यूम इन्वॉल्व होगा वो डिपेंड होगा, जिसके फॉर्मूले में वॉल्यूम इन्वॉल्व नहीं होगा डिपेंड नहीं होगा. हाँ। ओके, तो कम बैक टू आवर टॉपिक। एक मिनट, इसको क्या हुआ? तो क्लास हाँ, अभी हम लोग क्या करते हैं, एक बीकर और लेते हैं, और बीकर में हम लेते हैं अभी सर यूरिया डालने के बाद टेम्परेचर 100.1 हुआ, ये गिवन है? हाँ वो गिवन है। वो कैसे होता है आपको सिखाऊंगा। मैंने क्या बोला, मैंने अभी तक प्रॉपर्टी सीखना शुरू नहीं किया, मैं आपको सिर्फ क्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मीनिंग समझाना चाहता हूँ राइट। वो क्यों होता है, कैसे होता है, कितना होता है, वो सब हमें सीखना है डिटेल में, बहुत डिटेल में। देखो एक साथ सब चीजें सीखेंगे तो प्रॉब्लम होगा ना, थोड़ा टाइम लेंगे। ओके सर। तो हमने वापस क्या लिया, 1 kg वाटर लिया राइट। तो ना सबको हमने व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर? 100 degree 100 Celsius. degree Celsius. 100 डिग्री सेल्सियस। ना अभी इसमें ऐड किया हम लोगों ने 0.1 मोल ग्लूकोज। प्लस ग्लूकोज क्या है, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल? Non-volatile. नॉन वोलेटाइल, शुगर है। Volatile. ग्लूकोज इज टाइप ऑफ शुगर, ऑल शुगर्स आर नॉन वोलेटाइल। Non-volatile. प्लस कितने पार्टिकल ग्लूकोज के? 6.022 022 into 10 raised to 22. 22 मॉलिक्यूल्स राइट, molecules. Molecule. या फिर पार्टिकल्स। तो क्लास ये ग्लूकोज आ गया, तो आपको मालूम है जब भी हम लोग ओके ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6. H12O6. और इसका मोलार मास कितना है? 180 है। फाइंड करोगे तो आ जाएगा आपको ग्राम पर मोल, आप फाइंड कर सकते हो इजीली। 180 ग्राम पर मोल ग्लूकोज का मोलार मास। तो बस अभी ग्लूकोज डाला, नॉन वोलेटाइल है। तो बस आपको मालूम है व्हेन वी ऐड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है?
इंक्रीज होता है। increase, क्लास गेस कर सकते कितना इंक्रीज होगा यहाँ पे? ऊपर 100 का 100.1 हुआ था, किसके केस में? यूरिया के केस में, राइट? ग्लूकोज के केस में वो कितना इंक्रीज होगा? क्या लगता है आपको? यूरिया का मोलर मास 60 था, राइट? और ग्लूकोज का कितना है? 180 सर है। 100.3 होगा। 100.3। चलो एक आंसर आ गया आपका। 0.3 increase, हाँ 0.3, ठीक है, गुड। कोई और आंसर आपके पास? आप आपका सोच बराबर है, डोंट वरी। तो 0.3 क्योंकि यूरिया का मोलर मास 60 और ये 180 है, तो 3 टाइम्स है, राइट? 3 टाइम्स बढ़ा, यस। आपको लगता है तो इसका कितना होना चाहिए? 0.3, 100.3 टेम्परेचर। सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होना चाहिए? 100.3। 100.3, पर क्लास यहाँ पे वो बॉइलिंग पॉइंट होता है एग्जैक्टली 100.1। कितना होता है? 100.1। यहाँ पे भी उतना ही आता है जितना किस में आया था? यूरिया में आया था, उतना यहाँ पे किसमें आ गया? ग्लूकोज में। तो क्लास यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा है, कितना बढ़ा है बोलो? 0.1, 0.1 डिग्री सेल्सियस। तो क्लास मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट बनने के बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, मतलब साइंटिफिकली एलिवेशन, राइट? एलिवेशन मतलब क्या? इंक्रीज। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा है, राइट? डज नॉट डिपेंड, क्या बोला मैंने? डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सोल्यूट। आपका सोल्यूट कौन सा, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। आपने यूरिया लिया या फिर आपने ग्लूकोज लिया, बॉइलिंग पॉइंट सेम चेंज हुआ, हाँ या ना? यस। yes, Yes. ओके क्लास में इसके बाद में दूसरा बिकर ड्रॉ करता हूँ, उसके बाद में डिफरेंट हुआ तो अलग आएगा ना। देखते हैं, वही करता हूँ मैं। अभी यहाँ पे बिकर लिया हम लोगों ने, उसमें कितना वाटर है? 1 kg वाटर, राइट? और उसमें हमने क्या ऐड किया? वापस ग्लूकोज ही ऐड करते हैं, राइट? क्या ऐड करते हैं? ग्लूकोज ही ऐड करते हैं। और अभी यहाँ पे कितना ऐड करते हैं हम लोग? 0.2 मोल ऐड करते हैं। कितना ऐड करते हैं? 0.2 मोल ग्लूकोज ऐड करते हैं। क्लास कितने पार्टिकल हो गए ग्लूकोज के आपके पास अभी? 12.044 into 10 raised to 6, ये बेटर रहेगा, 2 into 10 raised to 10 raised to 22, 22, 10 raised to 22, yes। तो क्लास जितना हमने बिकर इस बिकर में लिया है 1 में, उससे डबल क्वांटिटी यहाँ पे लिया है, हाँ या ना? यस। yes, डबल क्वांटिटी लिया है, राइट? जितना यहाँ पे लिया है उसका डबल क्वांटिटी लिया है। तो क्लास यहाँ पे प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट उतना ही रहेगा, कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री Celsius. तो क्लास इस सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होगा 100.2 प्लस डबल ज़्यादा के 100.2। तो क्लास चेंज कितना होगा यहाँ पे बोलो? 0.2, तो क्लास ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। तो क्लास ये कितना है? 0.2। तो क्लास अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स डबल तो प्रॉपर्टी भी डबल। तो क्लास वो पार्टिकल कौन है, उसको प्रॉपर्टीज को फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं पड़ता है। ग्लूकोज है, यूरिया, प्रॉपर्टी बोलता है कौन सा पार्टिकल मुझे मत बता, जब तक नंबर सेम तब तक प्रॉपर्टी सेम, नंबर चेंज प्रॉपर्टी चेंज, समझा? बॉइलिंग पॉइंट Yes. कितना बढ़ेगा? बताओ ना सर। बॉइलिंग पॉइंट ओके मैं बता रहा हूँ बच्चे लोग। हाँ बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ेगा कौन डिसाइड नहीं करेगा? आप Nature कौन of सा solid- आप nature कौन सा of solid- हाँ solid. नेचर ऑफ सॉलिड, आप कौन सा सॉलिड यूज करें वो डिसाइड नहीं करेगा। तो कौन डिसाइड करेगा? क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट। पार्टिकल्स कितने हैं किसमें? सॉल्यूशन में। तो आप कोई भी सॉलिड लो, जब तक कोई भी सॉलिड लो, जब तक सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होंगे? सेम होंगे। यहाँ पे कितना पार्टिकल्स है बोलो? 6.022 10^22, राइट? टू द पावर 22। किसके? ग्लूकोज के। और ऊपर 6.022 into 10^22 किसके? यूरिया के। यूरिया के। सॉलिड अलग अलग है, यहाँ पे यूरिया, यहाँ पे ग्लूकोज। दोनों के पार्टिकल्स क्या है? सेम है। सेम है। तो दोनों भी केस में बॉइलिंग पॉइंट सेम चेंज हुआ, कितना हुआ? 0.1 से। 0.1, ये समझा आपको? यस सर, यस। तो बस अभी अगर पार्टिकल चेंज किया है, अभी ग्लूकोज का पार्टिकल का नंबर चेंज किया आपने, इंस्टेड ऑफ यूजिंग 0.1 इफ यूज 0.2 मोल, मतलब पार्टिकल डबल किए, तो आपका प्रॉपर्टी वापस क्या हो गया? डबल हुआ। चेंज हुआ। क्लास वापस बोलता बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, ये चेंज आता है ना वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ये दिमाग में आ रहा है आपके? यस सर, Yes, sir. नॉट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, व्हिच इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी?
चेंज change in इन boiling point. तो क्लास अभी एक क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग इसका आंसर बराबर देते हैं, मतलब बहुत कम लोगों ने इसका आंसर बराबर दिया है मुझे। हम लोग बीकर लेते हैं, बीकर में लेते हैं 1 kg वाटर, और इसमें हम करते हैं हम लोग 0.1 मोल सॉल्ट, खाने का नमक, राइट? Yes. बिफोर एडिंग सॉल्ट, सॉल्ट ऐड करने से पहले व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर? 100 degree degree 100 Celsius. degree Celsius. 100 डिग्री सेल्सियस। प्लस यहाँ पे सॉल्ट के मोल कितने? 0.1 मोल, मतलब कितने मोल? 0.1 mole. 6.02 6.02 into 10 to 10 raised raised to to 22 22. 22 particles. 22 NaCl, right? molecules. NaCl molecules, Formula units. फॉर्मूला यूनिट्स, ठीक है। प्लस अभी बॉइलिंग पॉइंट कितना आएगा NaCl डालने के बाद? 100.1. 100.1. 100.1, ठीक है। मैं लिखता हूँ 100.2। सोचो क्यों? मैंने बोला ऑलमोस्ट सब लोग रॉन्ग आंसर देते हैं, इसका 100.2 आंसर आएगा। क्यों आएगा 100.2? सर Na का भी और Cl भी है इसलिए। हाँ, तो क्या होता है जब हम NaCl पानी में डालते हैं, राइट? क्लास Yes. कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक क्या होता है? NaCl Colligative 6Cl से कोलिगेटिव surround प्रॉपर्टी क्या रहता बोलता है? वो कौन है हमें फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? वो किसके ऊपर डिपेंड होता है? नंबर के ऊपर, बराबर है? Yes. तो आप Yes. NaCl पानी में डालोगे, कितना NaCl डालोगे? 0.1 मोल NaCl पानी में डालोगे, तो NaCl will break and give you Na plus and Cl Cl minus. minus. C minus. तो सोल्यूशन में 0.1 मोल Na प्लस होंगे, 0.1 मोल Cl माइनस होंगे। Cl minus. तो प्रॉपर्टी देखता नहीं कौन है, प्रॉपर्टी क्या देखता है? सिर्फ आपके पास कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, राइट? Yes. और प्रॉपर्टी बोलता है वो कोई भी हो, मुझे वो कौन है उससे फर्क नहीं पड़ता। प्रॉपर्टी बोलता है मुझे उसका क्या चाहिए? नंबर। समझ में आ रहा है? तो अब क्या सभी कितने मोल्स हो गए? इसका 0.1, इसका 0.1, कितना हो गया? 0.2 मोल हो गया, राइट? 0.2. 0.2. Yes. मतलब पार्टिकल्स कितने हो गए आपके? है ना? 0.022 into 10 raised to 22. 0.022 into 10 raised to 22 प्लस सर ये आयंस के लिए पॉसिबल होगा? क्या? फिर से बोलो। आयंस के लिए देखो आयंस वो कुछ भी हो, प्रॉपर्टी का डिमांड क्या है? प्रॉपर्टी किसको देखेगा? सिर्फ पार्टिकल्स Quantity को, को नंबर को देखेगा। क्वांटिटी मतलब क्या? क्वांटिटी भी अलग अलग तरह का होता है। यहाँ पे कौन सा क्वांटिटी मतलब क्या? नंबर। number. Yes. प्रॉपर्टी बोलेगा सॉल्यूशन में कितने पार्टिकल है सॉल्यूट के, वो सॉल्यूट का पार्टिकल दिखता कैसा है, उसका साइज क्या है, उसका शेप क्या है, बोल रहा है उससे उसके नेचर से लेना देना नहीं, उसको किसके लेना देना है? उसके Number से. नंबर से। बस किसी का माइक बहुत ज्यादा ये कर रहा है, 1 मिनट बंद करोगे? घर पे टीवी का आवाज आ रहा है, बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है, प्लीज। हेलो, हाँ ठीक है। तो प्रॉपर्टी क्या बोलता है? वापस आ रहा है, अरे मैं म्यूट करूँगा सबको। हाँ ठीक है, आपको आप अनम्यूट कर लो खुद में बात को, ठीक है? हाँ, जिसको आंसर देना अनम्यूट करना। तो क्लास प्रॉपर्टी क्या बोलता है? नंबर से फर्क पड़ता है, राइट? एवरीवन? Yes. Yes. प्रॉपर्टी डिपेंड। हाँ, तो ये प्रॉपर्टी अगर यहाँ पे NaCl समझ आता है, NaCl और ग्लूकोज, ये देखो ये आपका ग्लूकोज है। आपके पास ग्लूकोज के कितने पार्टिकल्स है सॉल्यूशन में? इस केस में 6.02 6.02 20 10 raised to 22. तो बॉइलिंग पॉइंट कितने से बड़ा? 0.1. 0.1. हाँ, अभी NaCl के कितने पार्टिकल आपके पास बोला यहाँ पे? 2 into 2 into 6.02. 6.022 into 10 raised to 22. बॉइलिंग पॉइंट कितने से बड़ा? 0.2. 0.2. से। तो क्लास बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना ये कौन डिसाइड करता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। हाँ, कौन नहीं करता? नेचर ऑफ सॉल्यूट। Nature of solute. नेचर मतलब क्या? काला गोरा नहीं है। नेचर मतलब क्या? कौन उसका सा साइज, solute है? उसका शेप, नथिंग विल मैटर, राइट? Yes. तो क्लास Yes. देखते हैं हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डेफिनेशन। तो पहला डेफिनेशन क्लास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने सीखना स्टार्ट नहीं किया, हम लोग क्या देख रहे हैं? सिर्फ मीनिंग, राइट? कोलिगेटिव सर लेकिन 0.1 तो NaCl टोटल था ना, तो 0.1 Na और 0.1 ठीक है। Cl में क्यों लिखा हुआ? बताता हूँ। तुम्हारे पास एक NaCl का मॉलिक्यूल होगा, एक NaCl का टूट के क्या देगा? आधा Na प्लस या एक Na प्लस? एक One Na Na प्लस। plus. एक मॉलिक्यूल, अगर आपने एक मॉलिक्यूल लिया NaCl का, तो आपको एक पार्टिकल Na प्लस का मिला और एक पार्टिकल Cl मास का मिला। तो एक पार्टिकल लेके आपको कितने पार्टिकल मिल रहे हैं? 2. 2 मिल रहे हैं ना? पार्टिकल्स मिल रहे हैं। डबल हो रहा है ना? क्वांटिटी नहीं हो रहा? Yes. Yes. पानी में डाल तो 1 रहे हो, पर पानी में वो टूट के 2 बन रहे हैं ना? Yes. Yes. और प्रॉपर्टी को फर्क नहीं पड़ता उस वो Na प्लस है या NaCl है। प्रॉपर्टी बोलता है नंबर की बात करो, तो प्रॉपर्टी देखते हैं यहाँ पे 2 नंबर है, तो बोलेगा मैं प्रोपोर्शनली क्या करूंगा? प्रॉपर्टी को चेंज करूंगा। एग्री? समझा या नहीं? क्लास ये
आपको प्रॉब्लम क्या हो रहा है, आपको लगता है Na टूट के आपको आधा Na प्लस आधा Cl माइनस मिलता है, क्या आधा Na प्लस आधा Cl माइनस नहीं होता, समझा? Yes, Na sir. प्लस पूरा एक Yes. होता है और Cl माइनस पूरा एक ही Yes, होता sir. है, अंडरस्टूड? तो प्रॉपर्टी डिपेंड्स ओनली ऑन व्हाट, नंबर एंड नॉट ऑन द नेचर। अब मैं Nature. आपको दूसरा उल्टा प्रॉपर्टी बताता हूँ, अगर अपना एसिडिक एसिड को डिसॉल्व करोगे किसमें, बेंजीन में, किसको, एसिडिक एसिड को, वाटर में नहीं है, बेंजीन में, किसको डालो, किसको किस में डालोगे, बेंजीन में, C6H6. C6 CH3COH, अगर हम लोग इसको बेंजीन में डिसॉल्व करते हैं तो बस ये आप सीखोगे बाद में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो एसिडिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ बेंजीन अंडरगो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या होता है इसका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो Hydrogen आपको दिखा तो मैं कैसे होता है, थोड़ा सा अभी, ये CH3COH है बराबर, वही मॉलिक्यूल लिखा मैंने, और ये भी CH3COH है बराबर ना, Yes. दो मॉलिक्यूल। अब बेंजीन में क्या होता है, ये दो मॉलिक्यूल एक दूसरे का क्या बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, और क्लास ये क्या बन जाता है, पूरा एक ही बन जाता है, बड़ा मॉलिक्यूल। तो मैं बोलता हूँ दो CH3COH बराबर है, कमान होके एक बड़ा मॉलिक्यूल बन गया, बराबर है। Yes. Yes, sir. तो इस केस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे या कम होंगे, Increase होगा। देख मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आपके पास आप लड्डू का, आपके पास एक लड्डू है राइट, 10 ग्राम का एक लड्डू है, और आपके पास 10 ग्राम का और एक लड्डू है राइट, Yes. आपके पास कितना लड्डू है, 20 Two. ग्राम। अरे नहीं, 20 लड्डू ग्राम। कितने हैं, कितने हैं, दो। तो है, ओके, दोनों को ज्वाइन करके एक बड़ा लड्डू बना है 20 ग्राम का, मुझे उसका वजन मत बनाओ, आपके पास लड्डू कितने हैं, 1. 1. तो 2 का 1 बना, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गया कम हो गया, बढ़ गया। कम हो गया, कम हो गया ना। तो क्लास एक बड़ा लड्डू टूट के 2 बनते तो increase होता, Increase नंबर ऑफ होता पार्टिकल इंक्रीज। तो क्लास फर्स्ट केस को बोलते हैं हम लोग, जब 2 पार्टिकल कम्बाइन होकर एक बनता है, इसको बोलते हैं हम लोग एसोसिएशन, क्या बोलते हैं इसको, association. Association. और एक बड़ा टूट के जब 2 या 2 से ज्यादा बनता है, इसको बोलते हैं हम लोग डिसोसिएशन। Dissociation. हमने 11 में सीखा था चैप्टर को, केमिकल इक्विलिब्रियम, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और ऑल, बराबर है। तो याद रखो, तो क्लास एसोसिएशन होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूशन में कम हो जाएंगे सॉलिड के, बराबर है। Yes. डिसोसिएशन होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स Increase हो. इंक्रीज हो जाएंगे। तो उस केस में आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो गए तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगा, बोलो, चेंज होगा, Change होगा. change. क्योंकि नंबर के ऊपर डिपेंड है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी प्योरली डिपेंड्स ऑन नंबर। तो क्लास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलेगा, बड़ा लड्डू होगा तो वो प्रॉपर्टी चेंज करेगा, बोलेगा नहीं वो बड़ा है छोटा उससे फर्क नहीं पड़ता, उसको किससे फर्क पड़ता है, उसके सिर्फ नंबर ऑफ नंबर से। तो क्लास ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिसाइड होता है तो में से सिर्फ 4 ही प्रॉपर्टीज है, और वो सब चारों प्रॉपर्टी क्या किस पे डिपेंड है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, और किसके ऊपर डिपेंड नहीं है, Nature of Nature solid. of- तो प्लस सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन तो क्लास याद रखो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल तभी है इफ सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, नहीं तो यहाँ पे डेविएशन आता है, वो देखेंगे। समझ लो डाइल्यूट सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है सॉलिड बहुत कम है, होता है. हाँ, तभी हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टडी कर पाते हैं। और ज्यादा कॉन्सेप्ट होगा तो क्या होगा, बहुत आगे का पार्ट है, जेडब्ल्यू का पार्ट देखेंगे, वो भी देखेंगे। तो सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ dilute solution which does not depend, बोलिए, on Nature. Nature of solute. Solute. but depends only on Number. क्लास नंबर क्या, Particles मत of बोलो, solute. मॉलिक्यूल्स मत बोलो, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जुट के पार्टिकल बन सकते हैं, ज्यादा आयन बन सकता है। तो प्रॉपर कौन सा होगा, नंबर ऑफ Particle. पार्टिकल्स, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जॉइन भी हो सकते हैं और टूट भी सकते हैं, राइट, Yes. जो भी। तो उसके लिए हम लोग प्रॉपर्टी यूज करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इन Solution. सॉल्यूशन। ओके क्लास, आपको मीनिंग समझा, पहले नहीं समझा, बोलो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसा प्रॉपर्टी है
जिसका वैल्यू सिर्फ डिपेंड होगा क्या आपके पास कितने सॉलिड के पार्टिकल्स है है और वो डिपेंड नहीं होगा किसके ऊपर नेचर के ऊपर पार्टिकल है Nature of नेचर के ऊपर डिपेंड वो कौन सा है वो डिसाइड नहीं करेगा प्रॉपर्टी का वैल्यू डिसाइड कौन करेगा नंबर कितना है तो सॉलिड कोई भी हो चलेगा वो बोलता है कोई भी सॉलिड मुझे चलेगा जब तक सॉलिड का वेट सेम है सॉरी जब तक सॉलिड का नंबर सेम है तब तक प्रॉपर्टी सेम दूंगा मैं और अगर नंबर चेंज होगा तो प्रॉपर्टी चेंज होगा चेंज हो जाएगा और उसमें से एक प्रॉपर्टी देखा हम लोगों ने वन ऑफ द प्रॉपर्टी हमें सीखना डिटेल में वो प्रॉपर्टी का नाम था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट राइट यस Yes. क्या बोलता है प्रॉपर्टी किसी भी सॉल्वेंट में हम लोग क्या ऐड करेंगे नॉन वॉलेटाइल नॉन वॉलेट सॉलिड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट तो क्लास किसी भी सॉल्वेंट में हम लोग क्या ऐड करेंगे नॉन वोलेटाइल सॉलिड तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा इंक्रीज होगा Increase. होगा और क्लास वो कितना इंक्रीज होगा कौन डिसाइड करेगा नंबर ऑफ Number of पार्टिकल्स particles. नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड और कौन नहीं करेगा नेचर ऑफ Nature सॉलिड of solid. तो बॉइलिंग पॉइंट Solute. कितना बढ़ेगा इट इज प्योरली डिसाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन एंड नॉट डिसाइडेड बाय नेचर ऑफ सॉलिड सॉल्यूट Nature of solute. तो एक प्रॉपर्टी ये है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हाँ तो दूसरा एग्जांपल देता हूं आपको मैं चलो यहाँ पे ही करते हैं लिखा हुआ हमारे पास पड़ा हुआ है तो क्लास हमारे पास बीकर में वाटर है राइट एनीबॉडी वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 Zero डिग्री degree 0 सेल्सियस degree Celsius. वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस राइट हाँ क्लास हम लोग वाटर में ऐड करेंगे क्या 0.1 मोल यूरिया यूरिया क्या है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट तो क्लास याद रखो जब हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं किसमें सॉल्वेंट में तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है क्या बोला मैंने कम हो जाता है तो क्लास समझो यूरिया डालने के बाद सॉल्यूशन इज फ्रीजिंग एट -0.1 डिग्री सेल्सियस कितने में फ्रीज होता है -0.1 डिग्री पे क्लास डिग्री सेल्सियस माइनस क्यों क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ता है कम होता है हमने बोला कम होता है कम होता है हाँ क्लास क्यों होता है कैसे होता है सब सीखना है नेक्स्ट लेक्चर में सब देखेंगे बहुत डिटेल में कैसे होता है क्यों होता है कब होता है एवरीथिंग तो क्लास फ्रीजिंग पॉइंट कितना चेंज हुआ तो यहाँ पे उल्टा फॉर्म लगा राइट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट राइट वहाँ पे सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट था अब यहाँ पे क्या आएगा सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन सॉल्यूशन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन तो कितना आएगा 0.1 माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस तो क्लास कितना होगा 0.1. डिग्री सेल्सियस तो क्लास कम हुआ क्लास कम होना ओके चेंज होना मतलब बढ़ना कम होना दोनों हो सकता है राइट यस Yes. इसमें फ्रीजिंग पॉइंट 0.1 से क्या हो रहा है कम हो रहा है कम राइट हो रहा है कम हो रहा है ओके क्लास अगर हम लोग यूरिया के जगह पे क्या यूज करते हैं ग्लूकोज यूज करते हैं पर उतना ही कितना 0.1 मोल और ग्लूकोज का ये क्या है इट नाइदर एसोसिएट नॉट डिसोसिएट वो टूट के ज्यादा मॉलिक्यूल नहीं बनेगा और कम होके कम भी नहीं बनेगा आपको समझा नाइदर एसोसिएट नॉट डिसोसिएट यस Yes. अगर आप 100 मॉलिक्यूल पानी में डालते हो तो पानी में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे 100 ही होंगे 100. तो वो सॉलिड कैसा है वो सॉलिड आपका नाइदर एसोसिएट नॉट डिसोसिएट नॉट डिसोसिएट ग्लूकोज और यूरिया भी तो प्लस Glucose. ग्लूकोज का वाटर का प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री 0 सेल्सियस डिग्री सेल्सियस अगर आपने यहाँ पे सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिए कितने जितने ऊपर थे उतने यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी फ्रीजिंग पॉइंट कितना चेंज होगा बोलो तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना 0.1. 0.1 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा 0.1 0.1 degree Celsius. सेल्सियस क्लास यहाँ पे पॉइंट मतलब बढ़ना है कम होना है कम होना तो यहाँ पे भी फ्रीजिंग पॉइंट 0.1 से चेंज हुआ मतलब कम हुआ और ऊपर भी फ्रीजिंग पॉइंट 0.1 से ही चेंज हुआ राइट हाँ चेंज हुआ यस हाँ Yes. अगर आप ग्लूकोज कितना 0.1 की जगह पे 0.2 मोल ग्लूकोज लेते तो -0.2 आता उधर तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज चेंज 0 डिग्री सेल्सियस 0 degree Celsius. पर अभी नंबर ऑफ पार्टिकल डबल हो गया राइट यस तो डिक्रीज भी डबल होगा डबल तो यहाँ होगा पे पॉइंट माइनस तो यहाँ पे 0.2 फ्रीजिंग पॉइंट वहाँ पे -0.1 गया था अब यहाँ पे -0.2 0.2 डिग्री हो जाएगा राइट तो चेंज इन Yes. फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पे कितना होगा 0.2 डिग्री सेल्सियस तो 0.2 से क्या हुआ यहाँ पे बढ़ा है कम हुआ है कम हुआ कम हुआ. तो बस यहाँ पे 0.1 और यहाँ पे 0.2 ऐसा क्यों क्योंकि यहाँ पे जितने particles पार्टिकल्स है डबल हुए यहाँ पे जितने पार्टिकल्स है उससे डबल पार्टिकल्स यहाँ पे बराबर है यस Yes. तो क्लास फ्रीजिंग पॉइंट चेंज होना ये कौन डिसाइड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स Particle. ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन कौन नहीं करता नेचर ऑफ Nature. तो ग्लूकोज या हो या यूरिया हो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल दोनों के सेम होते तो फ्रीजिंग पॉइंट दोनों का सेम क्वांटिटी से चेंज हुआ था राइट
पर किसी का भी Yes. नंबर चेंज हुआ तो फ्रीजिंग पॉइंट चेंज अलग हुआ, ठीक है। हाँ क्लास, अगर NaCl होता तो 0.1 मोल, 0.1 NaCl, क्लास NaCl क्या होता है, डिसोसिएट होता है, राइट। 0.2 Associate होता है NaCl डिसोसिएट होता है, क्लास NaCl डिसोसिएट होता है, एग्री, NaCl डिसोसिएट होता है, तो नंबर ऑफ Yes. पार्टिकल्स क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं कम हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, बढ़ जाते हैं तो यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, डबल ज्यादा हो होएगा, जाएगा राइट। डबल हो जाएगा, डबल होगा। -0.2 Pure डिग्री water, -0.2 डिग्री सेल्सियस, तो डेल्टा TF 0.2 डिग्री सेल्सियस 0.2 डिग्री सेल्सियस, क्लास 0.2 मतलब यहाँ पे बढ़ना है कम होना है, यहाँ पे कम होना। कम होना 0.2 से चेंज हुआ, राइट। हम लोग प्लस माइनस साइन लेते हैं चेंज के लिए, चेंज 0.2 से हुआ है, हम लोग सर बोलेंगे अगर सिंगल से होगा तो वो हर इसमें 0.1 से ये होगा, चेंज होगा। नहीं ये एग्जांपल, ये सिर्फ नंबर इमेजिनरी नंबर से, मतलब हाइपोथेटिकल नंबर से, मतलब वो कितना होगा एग्जैक्टली हमें मालूम नहीं, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कितना, मतलब समझ रहा है, ये एग्जांपल्स के लिए हमेशा 0.1 से Yes, जरूर sir. नहीं है। हाँ, इट डिपेंड्स कौन सा सॉलिड हम ले रहे हैं। सर मतलब ऐसे भी हो सकता है ना, अभी यूरिया मिक्स किया और ग्लूकोज मिक्स किया, तो नहीं, यूरिया का मतलब फाइनल टेम्परेचर दोनों का अलग अलग रहेगा, पर नहीं आएगा, चेंज सेम रहेगा। नहीं, तुम यूरिया और ग्लूकोज मिक्स करके डालोगे ना, रिएक्शन हो जाएगा। नहीं रिएक्शन सर नहीं होगा, मतलब एक ही ने अलग अलग इसमें मिक्स किया, मतलब मतलब यूरिया वाटर में डाला एक बीकर में, दूसरे इसमें ग्लूकोज एक डाला मिनट रुको, मैं लिखता हूँ, यहाँ पे यूरिया लिया वाटर में, राइट, वाटर में, यस, तो दूसरे बीकर में ग्लूकोज लिया वाटर ग्लूकोज, में, हाँ 0.1 मोलर है दोनों, और दोनों, ये भी 0.1 मोलर है और ये भी 0.1 मोलर, राइट। हाँ यस हाँ, सर, तो दोनों का फाइनल टेम्परेचर अलग रहेगा सेम, और चेंज सेम रहेगा ना। ठीक है, अभी बताता हूँ मैं 0.1 मोलर मतलब क्या बताऊँ मुझे, 0.1 मोल इन 1 लीटर, राइट। 1 लीटर, यहाँ पे 0.1 मोल इन 1 लीटर, 1 लीटर, दोनों को मिक्स करोगे तो 0.2 मोल इन 2 लीटर, तो टू ये लीटर 0.1 ही हो गया ना, 1 हो गया, तो यस सेम ही आएगा दोनों का, नहीं समझा, यस तुम्हारा सर, डाउट क्लियर हुआ या नहीं, पहले बताओ मुझे। यस यस वो 0.1 मोल 1 लीटर में था, ये भी 0.1 मोल 1 लीटर में, मिक्स किया तो 0.2 मोल 2 लीटर में हो जाएंगे, राइट। यस तो नेट सर, पार्टिकल्स कितने मिक्स होंगे नहीं आपके, किया सर, मतलब मिक्स नहीं किया मिक्स नहीं, वो, हाँ स्टार्टिंग में चलो मिक्स नहीं आपने किया, बोला था ना कि वो मतलब टेम्परेचर सेम रहेगा, दोनों का चेंज सेम रहेगा, नंबर मतलब नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, पर वो हाँ फाइनल टेम्परेचर सेम रहेगा कि चेंज सेम रहेगा। फाइनल सेम होगा तो ही चेंज सेम होगा ना, बिकॉज प्योर का फ्रीजिंग पॉइंट सेम फिक्स होता है ना, प्योर यस का सर, बॉइलिंग समझा पॉइंट तो फिक्स है, समझा समझा समझा, ये 100 है, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, राइट। यस यस तो चेंज दोनों का फाइनल सेम होगा तो ही चेंज सेम आएगा, बराबर ना। यस समझा। ओके हाँ गुड। तो क्लास ये होता है कोलिडी प्रॉपर्टी। तो क्लास दूसरा कोलिडी प्रॉपर्टी कौन सा सीखा हम लोगों ने, पहले देखा इलेक्शन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा कौन सा होता है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट तो किसी भी सॉलिड में हम लोग क्या ऐड करेंगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो क्या होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, कम होगा। तो रिलेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एक कोलिडी प्रॉपर्टी है, दूसरा डिप्रेशन ऑफ, क्लास हमें हर एक प्रॉपर्टी बहुत डिटेल में सीखना है, डिप्रेशन ऑफ। फ्रीजिंग पॉइंट। आप मुझे इतना बता दो ऑनेस्टली कि आपको कोलिडी प्रॉपर्टी का मतलब समझा नहीं समझा, मीनिंग समझा। यस सर, यस यस Yes, सर, sir. हाँ वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत लोगों को मीनिंग ही नहीं समझता। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, तो डेल्टा TF। तो दुनिया में ऐसा सिर्फ 4 ही प्रॉपर्टी है, क्या क्या प्रॉपर्टी है, इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या, अगर आप सॉल्वेंट में क्या ऐड करोगे, सोल्यूट ऐड करोगे, कौन सा सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, राइट। Yes. यस, तो बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ेगा ये कौन डिसाइड करेगा, नंबर ऑफ नंबर ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन दैट पार्टिकल्स, सोल्यूट, और कौन नहीं करेगा, नेचर ऑफ नेचर सोल्यूट, Nature of solute. हजारों अलग अलग सोल्यूट लो, पर अगर नंबर ऑफ पार्टिकल सेम रखते हो तो बॉइलिंग पॉइंट चेंज भी क्या आएगा आपका, सेम सेम ही रहेगा, आएगा। सेम, Same. पर जैसे आप सेम सोल्यूट लो पर नंबर ऑफ पार्टिकल डबल कर लो तो बॉइलिंग पॉइंट का चेंज भी क्या होगा, डबल हो जाएगा, चेंज होगा, डबल हो जाएगा। डबल हो जाएगा। तो क्लास डबल होना मतलब बॉइलिंग पॉइंट की बात करो तो डबल से बढ़, मतलब डबल से बढ़ जाएगा, राइट, और फ्रीजिंग की बात करो तो डबल से कम हो जाएगा। होगा, प्लस ये प्रॉपर्टी का नाम याद रखोगे तो भी आपका बहुत फायदा होगा। इलेवेशन मतलब क्या, बढ़ना, बढ़ना, और डिप्रेशन मतलब क्या, डिक्रीज होना, होना। ठीक है। तो क्लास तीसरा क्लोरिडी प्रॉपर्टी हमें सीखना है, एक्चुअली वो सबसे पहले ही करना है हम लोग को, एंड दैट इज
लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब ये क्या होता है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, एक पूरा लेक्चर जाएगा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हर एक प्रॉपर्टी, ये दोनों साथ में हो जाएंगे एक लेक्चर में, इसके लिए पूरा लेक्चर जाएगा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो हमें वेपर प्रेशर क्या होता है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, या फिर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फिर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्लास ये सीखेंगे तभी आपको बताऊंगा कैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और क्यों है, ठीक है। पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला। और क्लास चौथा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे इजी है, जिनको बायो उनको मालूम है, ऑस्मोटिक प्रेशर। नाम सुना है ऑस्मोटिक प्रेशर? No. स्टूडेंट्स मेरा आवाज आ रहा है आपको? Yes. 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 Yes, sir. लोगों ने बायो में ऑस्मोटिक प्रेशर टर्म सिखा रहेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर Osmosis. ऑस्मोसिस में, हाँ एक मिनट, कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, तो ऑस्मोटिक प्रेशर देखेंगे हम लोग, हर एक प्रॉपर्टी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ये क्लास ये हो गया आपका चौथा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो देयर आर 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नोन टू अस। कौन सा? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या फिर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा कौन सा है? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर। प्लस एक चीज इंटरेस्टिंग है, अगर आपको पहला प्रॉपर्टी आता है तो दूसरा एंड तीसरा अपने आप आएगा, उसको आपको अलग से सीखने की जरूरत नहीं है। इफ यू अंडरस्टैंड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, बिकॉज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ये दोनों भी चीजें किसके ऊपर डिपेंड है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के ऊपर। नहीं, हाँ मतलब हाँ ठीक है, नंबर के ऊपर नो डाउट, डिपेंड्स ऑन इसके ऊपर है, नंबर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के ऊपर। Paper तो अगर pressure. आपको लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर समझ में आ गया तो आपको एलिवेशन एंड डिप्रेशन ये दोनों प्रॉपर्टी सीखना बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, एक्चुअली बहुत इजी हो जाएगा। एक मिनट, मेरा लैपटॉप का बैटरी खत्म हो गया। प्लस अब तक देख लो ये सब प्रॉपर्टीज। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा कौन सा है? ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके क्लास, एनीबॉडी नो व्हाट इज वेपर प्रेशर? किसने सुना है वेपर प्रेशर क्या होता है? 11 में सीखा था हम The लोगों ने। pressure exerted by the vapor of a liquid in its equilibrium state. ठीक है, वेरी गुड। अब इसका मतलब समझते हैं, मीनिंग। तो मैं आपको वेपर प्रेशर क्या देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमारे पास एक बीकर है। ओके, बीकर में हमने लिया कोई भी लिक्विड। क्लास सबसे इजी लिक्विड कौन सा? सबसे सिंपल हमारे लिए वाटर, ठीक है। Water. बीकर में हाँ कोई भी लिक्विड चलेगा। वाटर, क्लास वाटर वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल है? Non-volatile. नॉन वोलेटाइल। वाटर का वेपर नहीं बनता, बारिश कैसे होता है फिर? Yes. Volatile है, volatile. तो वोलेटाइल है, मतलब वाटर वोलेटाइल लिक्विड है। इवेपोरेशन वगैरह आपने सीखा है ना? Yes. Yes. हाँ, तो क्लास ये वाटर है। तो क्लास ये वाटर के मॉलिक्यूल्स है कहाँ पे? सरफेस पे, राइट। Surface पे. और यहाँ पे मॉलिक्यूल कहाँ पे? अंदर, इसको बोलते हैं बल्क में। Bulk. Yes. तो सरफेस के मॉलिक्यूल और ये बल्क के मॉलिक्यूल है। ओके क्लास, एट रूम टेम्परेचर हम लोग बात कर रहे हैं, या कोई भी टेम्परेचर चलेगा। लेटेस्ट टॉक इज रूम टेम्परेचर। और क्लास यहाँ पे ऊपर ढक्कन है। क्लास अगर ढक्कन नहीं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, सॉरी वेपर प्रेशर नहीं सीख सकते हम लोग। ऊपर क्या होना चाहिए आपका? कंटेनर मस्ट बी क्लोज कंटेनर। कैसा होना चाहिए Closed कंटेनर? container. क्लोज कंटेनर। ओपन कंटेनर में हम लोग वेपर प्रेशर नहीं सीख करेंगे। यस सर। सर यहाँ पर क्लास ये क्लोज कंटेनर है। हाँ बोलो ना, बोलो, सुन रहा हूँ मैं। यस सर क्लोज कंटेनर है। हाँ, ये क्लोज कंटेनर है, ठीक है। हाँ क्लास ये सब वाटर के मॉलिक्यूल है। तो क्लास लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर एट रेस्ट और दे आर मूविंग रैंडमली। Moving randomly. Moving randomly. तो क्लास ये मॉलिक्यूल बल्क के है और ये मॉलिक्यूल कहाँ पे? सरफेस। Surface पे. सरफेस पे। तो क्लास जो मॉलिक्यूल सरफेस पे होते हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी कंपैरेटिवली क्या होता है? ज्यादा होता है। किससे? ज़्यादा होता है. बल्क के Bulk मॉलिक्यूल। वाले क्लास molecules से. इतना डिटेल में अपने टेक्स्ट बुक में नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देके, क्योंकि चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो उनका काइनेटिक एनर्जी बल्क के मॉलिक्यूल से ज्यादा होता है। ओके, उसका सिंपल लॉजिक है, जो बल्क का मॉलिक्यूल है वो सराउंडेड फ्रॉम ऑल द साइड, पर यहाँ पे जो सरफेस का मॉलिक्यूल है उसके ऊपर कोई नहीं, राइट। ऊपर कोई नहीं. Yes. Yes. तो उसका नेट अट्रैक्शन फोर्स क्या है? उसका वीक है, कम है। Downward से.
हाँ नहीं, मतलब नेट फोर्स कम है ना उसको, हाँ यस ठीक है, जो भी है प्लस, तो इसका ये जो मॉलिक्यूल्स है किसके सरफेस के ऊपर, उनका काइनेटिक एनर्जी कंपेरेटिव ज़्यादा होता है बल्क के मॉलिक्यूल से। अगला दूसरी चीज़ क्या है, ये बल्क के जो मॉलिक्यूल है दे आर कंटिन्यूसली मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, अदर प्लेस and they move from one place to other place. Okay, they possess kinetic energy. They collide with each other. आपस में टक्कर मारते हैं, राइट? यस तो they collide with each other. तो बस ऐसा क्या हो सकता है, कब सरफेस के मॉलिक्यूल को कोई ना कोई बल्क का मॉलिक्यूल कभी ना कभी कोलाइड करेगा, हाँ या ना? यस Yes. तो इनको भी कोलिजन मिलेंगे। और क्लास अगर उनके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है और उनको नीचे धक्का मिला तो क्लास ये मॉलिक्यूल क्या हो सकते हैं, एक में कम आउट, राइट? वो बाहर आ सकता है। कौन से फॉर्म में क्लास, ये यहाँ पे कौन से फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में, राइट? और यहाँ पे कौन से फॉर्म में आ सकता है वो, गैसियस Vapor. वेपर फॉर्म में, Vapor. वेपर फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में आ सकता है। तो क्लास ये अभी गैसियस फॉर्म में बाहर आ गया, राइट? मॉलिक्यूल, तो क्लास ऐसे मॉलिक्यूल बाहर आते रहेंगे, बराबर है? यस तो क्लास थिंग इज दैट कंटेनर कैसा है, क्लोज कंटेनर, राइट? तो बाहर नहीं जा सकते, बराबर ना? यस Yes. कंडेंसेशन हो जाएगा फिर। हाँ देखते, वेरी गुड। तो क्लास ये मॉलिक्यूल्स जो बाहर आ गए उनके पास भी क्या है, बोलो तो काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली लिक्विड से ज्यादा है, राइट? लिक्विड से Yes. हाँ, Yes. काइनेटिक एनर्जी है, तो दे आर आल्सो मूविंग रैंडमली। तो व्हेन दे मूव Yes. रैंडमली दे कोलाइड विद ईच अदर each other एंड दे विल आल्सो कोलाइड ऑन द सरफेस surface molecules ऑफ द लिक्विड, राइट? yes प्लस यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ, आपका लिक्विड क्या बना, वेपर बना, राइट? Vapor. vapor बना प्रोसेस इज कॉल्ड एज वेपराइजेशन। vaporification Vaporization. vaporization वेपराइजेशन क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। तो प्लस डू यू एग्री दैट स्टार्टिंग में वेपराइजेशन का रेट ज्यादा होगा, yes तो रेट ऑफ वेपराइजेशन हाई ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा होगा ज्यादा होगा, राइट? वेपराइज कम ना होगा। जैसे जैसे वेपर का नंबर, ओके, जैसे वेपर्स का नंबर बढ़ेगा तो बाद में क्या होगा, मॉलिक्यूल जो वेपर मॉलिक्यूल दे अगेन एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड एंड अगेन ट्राइंग टू गो बैक इन द लिक्विड स्टेट, liquefaction होगा वापस लिक्विड स्टेट में जाना चाहते हैं। में पहुंच Yes. प्लस जाएंगे। बोलते हैं हम लोग कंडेंसेशन, क्या होता है इसको, condensation कंडेंसेशन। Condensation. तो फॉरवर्ड रिएक्शन इज वेपराइजेशन बैकवर्ड रिएक्शन इज and backward reaction is Condensation. 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 इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा। Okay, तो प्लस स्टार्टिंग में रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या होगा, जीरो होगा, राइट? zero होगा yes स्टार्टिंग में। और रेट ऑफ वेपरेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। maximum जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे प्रोग्रेस होगा तो वेपराइजेशन का रेट कम होता जाएगा, कंडेंसेशन का रेट कम बढ़ते Increase बढ़ता जाएगा जाएगा। तो एक रेट जो पहले मैक्सिमम था वो कम हो रहा है और जो जीरो था वो बढ़ रहा है, राइट? बढ़ रहा है yes तो एक टाइम ऐसा आएगा कि रेट ऑफ वेपराइजेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन बिकम Equal. इक्वल। equal इसको हम लोग फिजिकल इक्विलिब्रियम, राइट? equilibrium yes प्लस फिजिकल क्यों, क्योंकि सेम स्टेट ऑफ मैटर है, राइट? ये भी वेपर भी H2 है एंड लिक्विड भी H2. H2 H2O इक्विलिब्रियम। तो क्या क्या आपका इक्विलिब्रियम आएगा, राइट? सर डायनेमिक मतलब क्या रहता है डायनामिक मतलब बताता हूँ, चेंजेस हो रहा है पर दोनों चेंज एक ही स्पीड से हो रहा है ना, तो हमें ऐसा Yes. लगता है कि चेंज हो नहीं रहा। अभी देखो जब दो ट्रेन चलती है बाजू बाजू में और दोनों का Yes. कभी तुमने कभी ऑब्जर्व किया रहेगा, दोनों का स्पीड सेम होगा तो हमें लगता है सामने वाला ट्रेन रुका हुआ है, रेस्ट पे Yes, yes yes. relative velocity रिलेटिव। हाँ वैसे तो क्या लगता है, तो दोनों भी रिएक्शन हो रहा है, फॉरवर्ड भी हो रहा है और बैकवर्ड भी हो रहा है, और backward भी दोनों हो का रहा है स्पीड क्या है, दोनों का स्पीड क्या है, सेम है। same है तो हमें क्या लगता है, दोनों रिएक्शन रुका हुआ है, पर एक्चुअली रुका हुआ है क्या, no नहीं, तो वो सेम स्पीड से चल रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज द डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक मतलब वो Dynamic. है, शुरू है, पर Yeah. हमें लगता है कि रुका है, ठीक है? yes तो equilibrium है। static equilibrium स्टैटिक मतलब बीकर में पानी भर के रखा है, पानी का लेवल चेंज हो रहा है, no नहीं, तो क्लास वो चेंज नहीं हो रहा, मतलब कुछ नहीं हो रहा ना, कुछ नहीं हो रहा मतलब क्या, वो स्टैटिक है, एक जगह पे रुका हुआ इक्विलिब्रियम है, बराबर? यस सर। yes sir समझा हाँ। तो रेट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ Condensation. कंडेंसेशन, condensation प्लस तो हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम आ गया। और क्लास देखो टेम्परेचर चेंज किया तो इक्विलिब्रियम का आपको मालूम है ना, फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। yes temperature हाँ, टेम्परेचर चेंज करो तो इक्विलिब्रियम का क्या होगा, पोजीशन चेंज होगा, राइट? change होगा yes टेक्स्ट बुक में ये टेम्परेचर को मेंशन नहीं किया पर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एट गिवन टेम्परेचर बोलना जरूरी है, राइट? बिकॉज इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज अटेंड एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। temperature अगर टेम्परेचर चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम का पोजीशन भी चेंज होगा। yes प्रेशर भी तो भी हाँ तो भी, पर यहाँ पे हम लोग प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहे ना बाहर से, तो प्रेशर का यहाँ पे फैक्टर नहीं आएगा। प्रेशर कब आएगा, जब हम लोग क्या करेंगे, बाहर से प्रेशर अप्लाई करेंगे,
राइट। अगर ये रूम Okay. टेम्परेचर भी बिकर है, अगर ये बिकर अगर गैस के ऊपर रहता तो इक्विलिब्रियम अलग कंडीशन में आता, राइट, बराबर ना। तो उसमें उस केस में Yes, वेपर yes. प्रेशर भी उस केस में Yes. वेपर प्रेशर भी अलग होता, वैल्यू अलग होता, ठीक है। तो वेपर प्रेशर क्या होता है, फिर मैं आता हूँ अभी वापस। तो ये जो मॉलिक्यूल है, कौन से वेपर के मॉलिक्यूल, वो क्या कर रहे हैं, Pressure लिक्विड के exert सरफेस के कर- ऊपर क्या एक्सर्ट कर रहे हैं, प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, राइट। pressure तो वो प्रेशर कब Yes. एट इक्विलिब्रियम कहलाता है वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं उसको, वेपर vapor प्रेशर। pressure Vapor pressure pressure. exerted by the vapor phase of the substance, right? Pressure exerted by the vapor phase of the liquid. Pressure exerted by the vapor phase of the exerted liquid by the liquid on the surface molecules surface of of liquid or on its surface. On its surface बोला तो भी चलेगा, on its surface Yes. at equilibrium Equilibrium. and at ये बुक में लिखा नहीं है, ये भी लिखना है, and at given temperature is called as what, vapor pressure। Vapor क्या होता है इसको? pressure. vapor pressure। तो क्लास कोई भी लिक्विड अगर क्या है, वोलेटाइल है, तो क्या बनाएगा, वेपर बनाएगा। vapor बनाएगा अगर उस लिक्विड को हमने क्लोज कंटेनर में रखा है तो क्या होगा, vapor एक टाइम ऐसा आएगा कि रेट ऑफ वेपराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, राइट। equal हो जाएगा yes Yes. तो एट इक्विलिब्रियम जो भी मॉलिक्यूल वेपर फेस में है, वो मॉलिक्यूल्स लिक्विड के सरफेस के ऊपर जो भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज व्हाट, वेपर vapor प्रेशर। pressure Vapor pressure. ठीक है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल में बात करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू एवरीवन।